all my lovely mathematicians. Welcome to the class. How are you guys? Are you all safe? Are you all doing well? Maths बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ. So how are you guys? I hope everybody is having a great time and you guys are having fun in making maths the easiest subject. तो बच्चों, before we start today's session, let's quickly revise our motto. Let's quickly, energetically revise our motto. What is our motto? Abracadabra, gilly gilly chew, mathematics, easiest bun jatu. So welcome all my mathematicians. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. And all my new subscribers and new Vedants, welcome to Vedantu Mathematicians. Let's make maths the easiest subject. So guys, today we are going to learn about some more topics of whole numbers. So this is the second session of whole numbers. If you have not seen the previous session, do watch it. It was about successors, predecessors and natural numbers. So बच्चों, today let's begin studying about whole numbers, number line and the remaining questions of exercise 2.1 and some property of whole number. So this is the Gyan for the day which you guys are going to get. So let's quickly start today's session and learn about whole numbers. Okay, so first of all, there's a special case. So what is that special case? That special case is nothing but 0. So this 0, what is this 0? Can we count? Can we count zeros? What were counting numbers? कल पढ़ाई किया था हमने. Counting numbers किनको बोलते हैं हम? Natural numbers को, जो कहाँ से start होते हैं? 1, 2, 3 and so on till infinity. But फिर हमें मिला कि अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है टू शो नथिंग, नथिंग को हम न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नथिंग को तो हम काउंट नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं, तो काउंट क्या करेंगे? तो इसका मतलब काउंटिंग नंबर्स यूज नहीं हो सकते. इसका मतलब कोई तो नंबर है जो हमारे काम आएगा इनको उसको डिनोट करने में. सो व्हाट इज दैट नंबर? दैट नंबर इज नथिंग बट 0. So 0 is not a counting number. If we want to represent something, we'll write it as 0 rows or no rows, right? So what is the predecessor of 1? कल एक क्वेश्चन आया था ना, हमने किया भी था सॉल्व. predecessor of 1 क्या होता है? predecessor of 1 is nothing but 1 minus 1 which gives us 0, right? अब ये 0 क्या है? ये natural numbers में तो था नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हमें कोई न्यू नंबर सिस्टम बनानी पड़ेगी जिसमें 0 भी आता है, राइट? सो दिस न्यू नंबर सिस्टम वेयर 0 comes before 1 is called as what? Is called as whole numbers. तो whole numbers क्या होते हैं? Nothing but counting numbers along with 0. whole numbers क्या होते हैं? आज तक हमने जो काउंटिंग नंबर्स पढ़े थे जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, अगर उसमें हम 0 को भी ऐड कर दें तो बन जाएगा क्या? होल नंबर्स. इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस एंड दिस शोज व्हाट? that suppose there are counting numbers in this circle. If I add 0 to the circle, this bigger circle will be called as what? Whole numbers. So that means what? All natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural number. And which is that whole number which is not a natural number? Very easy. 0. 0 is the whole number which is not a natural number. समझ में आ गया? होल नंबर्स किनको बोलते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स प्लस 0, इनको बोला जाता है होल नंबर्स. ठीक है? एंड दिस इज व्हाट आवर चैप्टर इज अबाउट. आवर चैप्टर इज ऑल अबाउट लर्निंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स. ओके, सबसे पहले उसके पहले हम देखते हैं नंबर लाइन ऑफ होल नंबर. सो होल नंबर की नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? नेचुरल नंबर्स की स्टार्ट होती थी 1 से. अब 1 में क्या जुड़ गया? 0. इसका मतलब होल नंबर्स की कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से, राइट? सो द नंबर लाइन ऑफ whole numbers starts from 0 and it goes on till infinity, right? and इस नंबर लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है?
1 minus 2 is 1, 3 minus 2 is 1, 4 minus 3 is 1, 5 minus 4 is 1. That means what? सारे numbers के बीच का unit distance, single distance की value क्या होती है? 1. So the distance between the points labeled as 0, 1, 2, 3, 4 is called as what? Unit distance. Unit मतलब 1, only 1 है उसकी value, right? So it is called as what? Unit distance. Now, as you will observe that numbers on the right hand side of a given number is always greater than, right? इसका मतलब क्या हुआ? 7 is on the right hand side of 6. That means 7 will be greater than 6. Similarly, 10 is on the right hand side of 9. That means 10 will be greater than 9, right? And this number line on the right hand side goes till where? This goes till infinity, right? So there is no ending of this number line. ठीक है, समझ में आ गया? होल नंबर्स की नंबर लाइन कैसी होती है? बहुत सिंपल सी होती है, 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है. ठीक है, चलो देन लेट्स क्विकली समराइज. कल जो नेचुरल नंबर्स पढ़ा था एंड आज जो होल नंबर्स पढ़ा था, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है. ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चंस में यूज आएगा, इसलिए ध्यान से सुनो. एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर और नॉट. सोचो सोचो सोचो, 1 के आगे जितने भी नंबर्स होते हैं उनका सक्सेसर तो होता है, बिकॉज इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट? सिमिलरली एवरी होल नंबर ऑल्सो हैज सक्सेसर, बिकॉज राइट हैंड साइड का तो कोई लिमिट ही नहीं है. हम 1 प्लस करते ही जा सकते हैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इन्फिनिटी तो कभी आएगा ही नहीं, है ना? सो एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर एंड एवरी होल नंबर ऑल्सो हैज अ सक्सेसर. देन देर इज नो नेचुरल नंबर हुज सक्सेसर इज 1. ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका सक्सेसर 1 हो? अब तुम बोलोगे मैम 0 का तो सक्सेसर 1 होता है, बट 0 नेचुरल नंबर थोड़ी है. 0 is not a natural number, right? So there is no natural number whose successor is 1, right? Then there is no whole number also whose successor is 0. अब 0 से पहले कोई नंबर आता है? नहीं आता है whole numbers में, right? तो that means what? There is no whole number जो 0 से पहले आता हो, है ना? और 0 जिसका successor हो. Similarly, which one is the smallest natural number? Smallest natural number is 1 and smallest whole number is 0. सबको पता है 1 की natural numbers की number line 1 से start होती है और whole numbers की number line 0 से start होती है. Then there is no largest natural number. Natural number की right hand side कहाँ तक जाती है? Infinity तक. कोई natural number है जिसको हम बोल सके कि ये largest है, इससे बड़ा कोई होगा ही नहीं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता है. सिमिलरली देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर ऑल्सो, क्योंकि वो भी इन्फिनिटी तक जाता है. नाउ वी ऑल नो दैट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर एंड 0 इज अ होल नंबर. तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज. अब चलो कल जो क्वेश्चंस रह गए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के, आज उनको कंप्लीट कर लेते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 2 from NCERT exercise 2.1 was write the 3 whole numbers occurring just before 10,001. अब 3 whole numbers बोला इन्होंने occurring just before. Before कौन आता है? predecessor. तो quickly हम इनके predecessors लिख लेते हैं. So what will be the predecessor of 10,001? 10,001 minus 1 equals to what? It will be 10,000. The 3 whole numbers occurring just before 10,001. ठीक है, तो ये हो गया पहला. दूसरा क्या होगा? 10,000 minus 1. Smallest 5 digit minus 1 क्या होता है? Greatest 4 digit number, right? Next क्या होगा? 9,999 minus 1 equals to 9,998, right? So 3 होल नंबर्स बताने हैं जो 10,001 के आगे आते हैं. एक हो गया 10,000, उसके आगे 9,999 और उसके आगे 9,998. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. जल्दी बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? फटाफट से बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. एवरीबडी नोज, अभी पढ़ाई की थी. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0, बिकॉज होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. सो द आंसर इज 0.
जीरो तो मेरा पता नहीं क्या अंडे जैसा बॉल जैसा, पता नहीं किसके ऐसा लग रहा है, जीरो ऐसा तो होता नहीं। ओके, आई नो माई हैंड राइटिंग इज रियली बैड, आई नो आई नो, क्या कर सकते हैं, अब है तो है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53? How many whole numbers are there between 32 and 53? बहुत सिंपल है, 32 और 53 के बीच में कितने नंबर्स है कैसे पता चलेगा? 53 माइनस 32 कर दो, 53 माइनस 32 क्या होता है? 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, so there are 21 whole numbers between 53 and 32. ठीक है? Now, all the students who are new to my class, I want to give you an information about Vedanta Pro subscription pack. Now, what is this pack? This pack is going to give you unlimited live sessions, unlimited recorded videos, unlimited notes, assignments and test series by India's best teacher. आपके पास डाउट है, हमारे पास सोल्यूशन है, आपके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास सारे सोल्यूशन है, वो भी सिर्फ एक पैक में। अब इसमें होता क्या है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चैप्टर वाइज सेशन पढ़ने हैं, माइक्रो कोर्स भी है इस पैक में, क्रैश कोर्स करना है वो भी है इस पैक में, टेस्ट सीरीज देनी है वो भी है इस पैक में, एंड असाइनमेंट्स प्लस आपको मिलते हैं लर्निंग मटेरियल भी। और ये सब कुछ सिर्फ एक पैक में। अलग से क्रैश कोर्स बाय नहीं करना है, अलग से माइक्रो कोर्स बाय नहीं करना है, अलग से लाइव भी बाय नहीं करना है, सब कुछ एक पैक में। आपको सिर्फ टाइम बताना है कि मुझे 1 महीने के लिए चाहिए, मुझे 2 महीने के लिए चाहिए, 3 4 5, 1 साल 2 साल, आपको सिर्फ टाइम बताना है और ये सब कुछ आपको उस टाइम के लिए एक साथ मिल जाएगा। 1 महीने में चाहो तो पूरा कोर्स पढ़ डालो, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? द प्राइस इज वेरी वेरी मिनिमल when you go to buy this pro subscription pack। वेबसाइट पे जाना, क्लास सेलेक्ट करना, ईयर ऑफ गिविंग एग्जाम सेलेक्ट करना, सेशन जो है आपका आपको दिखा देगा कि कौन सा पैक आपके लिए वैलिड है। फिर वो शो करेगा आपको 4000 समथिंग रुपीज, बट 4000 पे मत करना, अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO सना खान प्रो, तो आपको मिल जाएगा एक डिस्काउंट एंड यू कैन बाय इट एट ओनली 2699। सो ऑल माई बच्चा लोग जो अपने मैथमेटिक्स को डेवलप करना चाहते हैं, who want to develop their brain, who want to develop their thinking in such a way that maths उनके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बन जाए। मतलब मैथ्स आपकी रियल लाइफ में इतना इनकॉर्पोरेट हो जाए कि आपको हर जगह मैथ्स लिखने लग जाए। अगर आप ये चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस पैक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line, also write them with the appropriate sign of less than or greater than between them। कुछ नहीं करना है, 2 होल नंबर्स दिए, कंपेयर करना है और बताना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। एंड ऑब्वियसली जो छोटा होगा वो किधर होगा, लेफ्ट में या राइट में? The smaller one will be on the left hand side, the greater one will be on the right hand side। नंबर लाइन याद है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे जाती है, तो बड़े नंबर्स किधर होते हैं, राइट साइड पे, राइट, और छोटे नंबर्स किधर होते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो लेट्स डू इट। द फर्स्ट वन इज 530 एंड 503। प्रोनाउंस करो 530 एंड 503, कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 530 is greater than 503। Which one will lie on the left hand side of the other? So 503 will be on the left hand side of 530। ठीक है, next, what is the next one? 370 and 307। Again 370 and 307, कौन बड़ा होता है? 370 बड़ा होता है। So what will be on the left hand side? 307 of course will be on the लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 370, क्योंकि जो छोटा है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। सिमिलरली 98765 एंड 56789। अब बड़े नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे? कैसे करते हैं कंपेयर? याद करो, कंपैरिजन सिखाया था मैंने, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट से कंपेयर करते हैं, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला डिजिट क्या है? क्योंकि इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है, तो सबसे पहले डिजिट को कंपेयर करेंगे। इसका सबसे पहला डिजिट है 9 और इसका है 5, मतलब ये 90,000 है
और ये 50,000 है ना, तो ऑब्वियसली 90,000 बड़ा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा 5, 6, 7, 8, 9 वाला नंबर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डी इज 983041 एंड 100230001। सबसे पहले क्या करना है? काउंट द डिजिट्स। इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एम आई करेक्ट? फिर से देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 या सो यहीं से पता चल जा रहा है 8 डिजिट वाला नंबर विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन 7 डिजिट वाला नंबर। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर होगा? स्मॉलर वाला नंबर होगा, राइट। सो आई एम जस्ट एनसर्कलिंग which one will be on the left hand side. So these numbers will be on the left hand side of the other number. ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कल के ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस रह गए थे उनको कर लेते हैं आज। सो कल कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए थे देखते हैं। हाँ, द फर्स्ट वन वाज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू, एवरीबडी नोज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स? सोच के बताओ। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, true, right? Because whole numbers include natural numbers, है ना? So this will be true. Next, all whole numbers are natural number. क्या सारे whole numbers natural number होते हैं? नहीं। First thing जो आज हमने डिस्कस की थी वो क्या थी? 0 is not a natural number, but 0 is a whole number. That means what? All whole numbers are not natural numbers. So this will be false. Next. What comes next? Yeah, 1 is the smallest whole number. अभी तो क्या था? 0 is the smallest whole number. So of course this will be false. 1 is not the smallest whole number. 1 is the smallest natural number. Remember. Next, the whole number 1 has no predecessor. 1 का कोई predecessor नहीं होता. Predecessor कौन है? 1 minus 1. 1 minus 1 क्या होता है? 0. 0 exist करता है. So the whole number 1 has no predecessor will be false, because the predecessor of 1 is 0, right? Okay. Next is, the whole number 13 lies between 11 and 12. The whole number 13 lies between 11 and 12. क्या वो 11 और 12 के बीच में आता है on the number line? नहीं, of course 12 के बाद आता है, right? So this will be false. Next, the whole number 0 has no predecessor. होल नंबर 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है, ट्रू और फॉल्स? अगेन दिस हैज टू कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं ये बोलूं कि 0 के पहले कोई नहीं आता है तो ऐसा नहीं है। 0 के पहले आता है, कौन आता है? -1 आता है ना। बट अगर मैं ये बोलूं कि 0 के पहले कोई होल नंबर नहीं आता है तो बात बदल जाएगी, है ना। तो द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर विल बी फॉल्स, बिकॉज इट हैज अ प्रेडिसेसर एंड दैट इज -1, एक इंटीजर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, दैट्स इट। सो दीज कंप्लीट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। 2 लेक्चर में हमने पहला एक्सरसाइज भी कर लिया। वेल डन गाइज, वेल डन, वेल डन। बट रुको, अभी और ज्ञान बचा है। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। चलो देखते हुए क्या है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस is goes like this. So बच्चों ये बताओ 2 + 3 क्या होता है? 2 + 3 क्या होता है? 2 + 3 क्या होता है? 5, right? Now tell me what is 5 into 7? 5 into 7 क्या होता है? 35, right? अब मुझे बताओ ये 5 और 35 क्या होल नंबर्स हैं? क्या 5 और 35 होल नंबर्स हैं? What are they? Yes, they are what? They are होल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने 2 होल नंबर्स को ऐड किया जो कि थे 2 and 3, तो मुझे क्या मिला? 5, एंड 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर। सिमिलरली जब मैंने 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मिला? 35, एंड दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर। दैट मीन्स व्हाट? कि इफ आई एड एनी होल नंबर I will always get a whole number. That means whole numbers are closed under addition. Similarly,
इफ आई टेक एनी टू होल नंबर्स, तुम लोग कोई भी एग्जांपल ले लो, 1 3 5 9 11 22 999 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, कोई भी होल नंबर ले लो, अगर उसको आप किसी और होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर होल नंबर ही मिलेगा। इसे हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज नथिंग बट दी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। समझ में नहीं आया, इस तरीके से समझो। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एक रूम है जिसमें सारे होल नंबर्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब उस रूम में जितने होल नंबर्स हैं वो या तो ऐड हो सकते हैं या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। बट उस रूम के अंदर कोई आ नहीं सकता और कोई जा नहीं सकता, ना इंटीजर आ सकता है ना होल नंबर बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई और फ्रैक्शन नहीं आ सकता, डेसिमल नहीं आ सकता, ठीक है। वो क्लोज्ड है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मैं इन सारे होल नंबर्स में से किसी भी होल नंबर को ऐड करूं तो आंसर जो है वो रूम के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या, आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो आप लोग खुद ट्राई करना, किसी भी दो होल नंबर्स को ले लो, 0 1 एनी होल नंबर, उनको ऐड करो, जो आंसर आता है वो भी होल नंबर होता है, राइट। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सिमिलरली आप कोई भी दो होल नंबर्स ले लो एंड उनको मल्टीप्लाई कर लो, 0 इंटू 1 0 इंटू 5 7 इंटू 9 12 इंटू 14, कोई भी दो होल नंबर्स ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आता है वो भी तो होल नंबर होता है। मतलब रूम के बाहर कोई नहीं गया, रूम के अंदर कोई नहीं आया, होल नंबर्स में ही होल नंबर रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्लोजर मतलब क्लोज्ड रहना, क्लोज्ड रहना मतलब होल नंबर पे कोई ऑपरेशन किया जाए तो होल नंबर ही आना चाहिए। अब ये कौन कौन से ऑपरेशन किए, मैंने किया एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। किसी भी दो होल नंबर्स के बीच में अगर मैं एडिशन करूं तो आंसर होल नंबर ही आना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गया समझ में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूं तो रिजल्ट भी होल नंबर ही होगा, एंड इसे बोला जाता है कि दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ बच्चों, क्विकली टेल मी व्हाट अबाउट द क्लोजर ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर ऑफ डिवीजन। एग्जाम्पल लो, सोचो, फिर मुझे कल बताना कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने पे क्या हमें होल नंबर्स मिलते हैं या कुछ और भी मिलते हैं, ठीक है। सो टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, see you tomorrow, and then we will discuss whether subtraction and division are closed or not in whole numbers. Till then, all my sweet bacha logs, take care, keep loving Vedantu Math Magician. See you tomorrow again with another important session of learning whole numbers. So all of you take care. Bye bye.